हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? क्या हाल है, कैसे हैं सभी लोग? सो टुडे आई एम ब्रिंगिंग यू अ वीडियो फुल ऑफ lot of information, and this information is very crucial for all those who are willing to join merchant navy as an officer. So today in this video I'm going to tell you what are the top colleges and sponsorship programs that you must not miss if you want to become an officer in merchant navy. So I will discuss all the colleges, all the sponsorship programs that are open for you to apply for if you want to join merchant navy as a deck officer. So in that case you have to go for either diploma in nautical science or BSc in nautical science, and if you want to go into the part of engineering, then you can join merchant navy as an engineer through marine engineering. So I'll tell you about the details of the colleges, what are the last date, where is the college located. Apart from that, also I will share, most importantly, the sponsorship programs that are open for you to apply. But before starting any further, I would also like to tell you that we are conducting a live session wherein I, along with Arnav sir, who is the chief engineer in a very renowned company, shipping company, and we will be discussing about the various life struggles in merchant navy, what are the opportunities in merchant navy, how can you become an officer, what all problems you have while becoming an officer. Each and everything will be discussed in that particular session. So if you want to join that session, and if you have some questions related to merchant navy, how to join, when to join, what to prepare for, how to prepare for, then we'll answer that as well in that particular session. So the link of Google form is pinned in the description. Kindly fill that Google form. We will call you back and we will we will inform you about the timings of the session, and then you can join those sessions and take the most of it. Right? चलिए भाई, तो शुरू करते हैं. What are the sponsorships and colleges you should not miss if you want to become an merchant navy officer? So the first is Indian Maritime University, IMU. So IMU, Indian Maritime University, is the टोटल अम्ब्रेला जिसके अंडर में प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस आते हैं. ठीक है. सो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें रहती हैं इसमें. उससे भी पहले एक और चीज, हमारा IMU CET की प्रिपरेशंस के लिए, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स की प्रिपरेशन के लिए, कॉलेजेस की प्रिपरेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20th of April से. Yes, the first batch started on 8th of April. तो पहला बैच 8th April को स्टार्ट हुआ था. The next batch is starting from 20th April. The name of the batch is Sailors 2.0 batch. Sailors 1.0 batch started on 8th April. तो अगर आपसे मिस हो गया है इसकी तैयारी करने के लिए, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ईच एंड एवरीथिंग वी आर कवरिंग. वी आर ऑल्सो कवरिंग इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आप डायरेक्टली क्लिक करके हमारे कोर्स का लिंक चेकआउट कर सकते हो. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स देन एंड देयर. ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, IMU CET की प्रिपरेशन, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम की प्रिपरेशन, प्राइवेट कॉलेजेस की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्रिपरेशन, ये पूरा का पूरा कोर्स की जो फीस है दैट इज जस्ट 4,999 रुपए में, जिसमें आपको पर्सनल 1-on-1 सेशंस भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए बतेरों टेस्ट करवाए जाएंगे कंडक्ट, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए बढ़िया. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं वो भी आपको पर्सनली मिलके बताएंगे एज इन मतलब ऑनलाइन मिलके आपके साथ पर्सनली इंटरेक्शन करके आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस.
each and everything will be covered in this particular course. The timing of the classes are, maths की क्लास चल रही है भाई 12th की, जिसकी हम लोग 12th में तैयारी करा रहे हैं, 12th वाला पार्ट. So this starts from 11:30 AM. Then aptitude वाली class starts at 2 PM. Then physics की class at 3 PM. English की class weekends पे चल रही है. और हम 12th की जैसे ही मैथ्स की तैयारी खत्म करा देंगे, जो हम 10 से 15 दिन में करा देंगे, उसके बाद हम इसी के बाद 11th की भी मैथमेटिक्स की पूरी प्रिपरेशन करा देंगे, क्योंकि 12th मैथमेटिक्स का ज्यादा कंटेंट पूछा जाता है. अराउंड 60-70% आर फ्रॉम क्लास 12th. सो इसलिए 12th की भी पूरी तैयारी कराएंगे और 11th के भी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको तैयार कराएंगे for IMU CET examination, for different sponsorship examination as well as for different colleges के examination. केमिस्ट्री की क्लास वीक में 2 से शुरू हो जाएगी, जैसे ही हमारा फिजिक्स और मैथ्स का कोर्स हो जाएगा कंप्लीट. क्योंकि केमिस्ट्री में आते हैं मात्र 20 क्वेश्चन, तो वो 20 क्वेश्चन कैसे निकालने हैं उसके लिए लिमिटेड चीज पढ़ाई जाएगी, स्मार्ट स्टडी कराई जाएगी. लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना है जो ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है. सो अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं. चलिए बात करते हैं सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की. IMU CET के थ्रू एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है. सो IMU कंडक्ट्स द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको कहते हैं IMU CET, एवरी ईयर ऑन ऑल इंडिया बेसिस. तो जितने भी कॉलेजेस हैं जो IMU के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, ऑल द कॉलेजेस, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इट इज कंपल्सरी टू अपीयर फॉर IMU CET एग्जामिनेशन. विदाउट टेकिंग दिस एग्जामिनेशन you won't be admitted to any of the university or any of the college or any of the courses. तो IMU CET का पेपर देना कंपलसरी है. अभी IMU CET का पेपर जब आप दोगे तो इसके बाद आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, BSc भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. तो कैसे होता है सारा का सारा एडमिशन प्रोसीजर, ये एक बार समझ लेते हैं जल्दी से. तो सबसे पहले आपको IMU CET का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट है 2 मई. यस, अभी लास्ट डेट बची है 2 मई है, तो आप अभी भी इस फॉर्म को भर सकते हो. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. 24 मई को इसका पेपर होने वाला है IMU CET का, और अगर आपने इस पेपर में फोड़ दिया, रैंक निकाल ली, तो मजा आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी. सो सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर IMU CET, फिर देन यू हैव टू अपीयर फॉर IMU CET, दैट इज ऑन 24 मई. यस, देन यू विल बी गिवन अ रैंक. सो IMU CET का रिजल्ट आएगा, आपको एक रैंक मिलेगी. जैसे ही आपको एक रैंक मिलती है, आप IMU के कैंपसेस में अप्लाई कर सकते हैं उस रैंक के थ्रू कि सर मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है. सो IMU में नवी मुंबई, कोलकाता और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आते हैं, तो आप IMU के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दीज रैंकिंग्स. गवर्नमेंट की तरफ से होता है सारा. सो यू हैव टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग ऑन द पोर्टल. फिर सीट एलोकेशन होगा, सीट कंफर्मेशन आपको करना होगा, प्रोविजनल सीट अलोकेटमेंट का लेटर मिलेगा आपको, अलॉटमेंट का लेटर मिलेगा. देन सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे आपके कि जितने सर्टिफिकेट्स आपने दिए सब सही है कि नहीं. फिर काउंसलिंग हो जाएगी और आपका एडमिशन हो जाएगा. दूसरा तरीका है, अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बोले तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो IMU के अंडर में आते हैं, तो उसके लिए डायरेक्टली आपको कॉलेजेस के फॉर्म्स भरने पड़ेंगे. अब कौन से कॉलेज का फॉर्म कब आएगा, क्या है, ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं. सो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये सारी चीजें, और आपको बहुत सारी पावरफुल इंफॉर्मेशन पैक्ड है इस छोटे से वीडियो में. ठीक है. सो ये कर सकते हैं. उसके बाद आप DGS से अप्रूव्ड जितने भी मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं थ्रू IMU CET रैंकिंग. तो बेसिक चीज सबसे पहले क्या चाहिए, IMU CET की रैंकिंग. कैसे मिलेगी IMU CET की रैंकिंग? वो मिलेगी IMU CET के पेपर में अपीयर होने पे. पेपर में अपीयर कैसे होंगे? पेपर में अपीयर होंगे जब आप IMU CET का फॉर्म भरेंगे. तो पहले फॉर्म भरना है, स्टेप 1 यही है. फिर IMU CET की प्रिपरेशन करनी है, फिर उसमें फोड़ना है, रैंक निकालनी है, और फिर आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे. ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी. कौन कौन से प्रोग्राम्स रहते हैं? तो भाई मैंने 3 प्रोग्राम्स के बारे में सबसे पहले आपसे बात की है. यही 3 प्रोग्राम सबसे मेन है. डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc इन नॉटिकल साइंस, ये वो लोग करेंगे जो शिप के पायलट बनना चाहते हैं, शिप चलाना चाहते हैं, पॉपॉय द सेलर मैन बनना चाहते हैं. वो लोग जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, शिप की मशीनरी पे काम करना चाहते हैं, उनको मरीन इंजीनियरिंग करनी है. यही बेसिक चीजें यहां पे बताई हुई है.
राइट। सो IMU CT का फॉर्म लाइव है, लास्ट डेट 2 मई है, एग्जाम डेट 24 मई है। इसका पूरा का पूरा लिंक यहाँ पे है। ये अगर आपको पूरी की पूरी PDF चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे ये पूरे की पूरी PDF आपको दे देंगे। आप लिंक पे क्लिक करके आराम से चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। देन सबसे पहला कॉलेज जिसका फॉर्म किसी को मिस नहीं करना चाहिए, दैट इज तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो आपको ऑफिसर बनाएगा मर्चेंट नेवी में। लोकेटेड है हाफ वे बिटवीन लोनावला एंड पुणे। सो जबरदस्त लोकेशन है भाई, हरियाली के बीच, पहाड़ों के बीच आप रहेंगे। बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन कॉलेज का कैंपस है, बेहतरीन खाना मिलता है, बेहतरीन रख रखाव होता है, बेहतरीन आउटडोर एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती हैं और आप वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको यहां पे पढ़ाती हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो BSc नॉटिकल साइंस का 100% से ज्यादा प्लेसमेंट है। इंजीनियरिंग करने के लिए मरीन इंजीनियरिंग का 100% से ज्यादा का प्लेसमेंट है। इवन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का भी 100% प्लेसमेंट है। तो ये जो कॉलेज है ना, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, इनकी खुद की शिपिंग कंपनी है तोलानी के नाम से, एंड एज अ रिजल्ट ये सारे ही बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट्स देते हैं। तो अगर आप BSc करना चाहते हैं नॉटिकल साइंस में तो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने की 31 मई 2025। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं नॉटिकल साइंस में तो इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। अगर आप इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं ETO तो 31 मई है 2025। इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर को मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन BSc नॉटिकल साइंस और BTech इन मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए 31 मई है तो लानी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने की लास्ट डेट। तो लास्ट डे का वेट मत कीजिए, तुरंत के तुरंत इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर यहां पे आपका एडमिशन हो गया तो भाई लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। ठीक है, मजेदार हो जाएगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा सा कैंपस है, बड़ा सा कैंपस है और ज़बरदस्त मौसम रहता है, ज़बरदस्त वेदर रहता है, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो तोलानी एडमिशन फॉर्म्स ओपन फॉर BTech एंड BSc कमेंसिंग फ्रॉम अगस्त 2025। कमेंसिंग फ्रॉम अगस्त 2025 मतलब जिनके बैचेस हैं वो अगस्त 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यू हैव टू ज्वाइन द कॉलेज इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो इसके लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। ये अगेन मैं पूरी की पूरी PDF आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इसके लिंक पे क्लिक करके इनकी वेबसाइट्स तक पहुंच सकें। नेक्स्ट, द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, बहुत जबरदस्त कॉलेज है। अगेन लश ग्रीन कैंपस है, हरियाली के बीच में आप रहेंगे, नेचर के बीच में आप रहेंगे, जबरदस्त चीजें हैं, जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, जबरदस्त कॉलेज है, इसको ज्वाइन किया जा सकता है। सो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? 10+2 में आपके PCM में एवरेज 60% आने चाहिए। 10th या 12th में आपके पास जो अंग्रेजी है उसमें मिनिमम 50% होने चाहिए, या तो 10th में या 12th में, दोनों में से किसी में भी 50% होंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन 10+2 डिग्री प्रोग्राम मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप अगर करना, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें दी हैं। आपको ज़्यादा ध्यान इस पे नहीं देना है, आपको किस पे देना है? BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड BSc इन नॉटिकल साइंस, दीज 3 कोर्सेज, दैट्स इट। बाकी वरना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद एक और कॉलेज आता है जिसका नाम है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग, HIMT। चेन्नई में है ये कॉलेज। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। सो 10+2 आपके पास मिनिमम 60% PCM में होने चाहिए, राइट? और IMU CT की रैंक मैंडेटरी है, वो तो सब में देनी ही देनी है। ठीक, eyesight unaided vision 1.06/6 in better eye and 0.676/9 in another eye, eye health, ये सारी चीजें, फिजिकल फिटनेस आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपको डेक पे जाना है तो आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। अगर आप मेरी तरह चश्मा लगाते हैं तो आप लेसिक सर्जरी करा के इस चश्मे को रिमूव कर लेंगे। लेसिक सर्जरी के बाद दे एक्सेप्ट एवरीवन। एंड अगर आप इंजन में जाना चाहते हैं तो इंजन में पावर थोड़ी बहुत हो सकती है, चश्मा आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वहां पे ज्यादा परेशानी की दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इसके भी DNS के जो फॉर्म है वो लाइव हो चुके हैं। 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर IMEC HIMT के लिए। इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं DNS कोर्स के लिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज अ 1 ईयर कोर्स। ठीक है, उसके बाद एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी मुंबई में है। बहुत ही अगेन पहाड़ों के बिल्कुल नीचे, बेहतरीन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतरीन कॉलेज है, ज़बरदस्त कॉलेज है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है, आपकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देख लीजिए, सारा 70% चाहिए इनको PCM में, मिनिमम 70% चाहिए, तो जिसके PCM में 70% आएंगे वही यहाँ पे काम कर पाएगा।
ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इंग्लिश में नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए, या तो 10th में या तो 12th में। 10th में 60 के ऊपर है, 60 है तो भी चल जाएगा, 12th में 60 के ऊपर है, 60 है तो भी चल जाएगा, दोनों में अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 60% यहां पे चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी हैं वो सभी के लिए, ज्यादातर कॉलेजेस के लिए सेम है, ठीक है। वो भी आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इसका फॉर्म लाइव है डीएनएस कोर्स के लिए, लास्ट डेट है 15 जुलाई। लिंक नीचे मैंने यहां पे डाल दिया है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल मूव ऑन टू द डायरेक्ट वेबसाइट, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है दैट इज टीएस रहमान। अगेन बहुत अच्छा कॉलेज है टीएस रहमान। इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बीएससी इन नॉटिकल साइंस की एलिजिबिलिटी है, 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। सो पीसीएम वाले बच्चे ही कर सकते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम 60% होना चाहिए पीसीएम में, और उसके बाद लेस देन 50% मार्क्स इन इंग्लिश, नॉट लेस देन 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। ये मुंबई में यूनिवर्सिटी आती है, टीएस रहमान मुंबई में आता है, काफी अगेन बहुत ही अच्छा एरिया है, नवी मुंबई में आता है ये। बेहतरीन कॉलेज है, बेहतरीन कैंपस है, इसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसकी भी वेबसाइट पे जाके सब कुछ चेक कीजिए। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15 अप्रैल। सो बहुत कम दिन बच्चे हैं इसको अप्लाई करने के लिए। जितने ज्यादा कोर्सेज में, जितने ज्यादा कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तब आप डिसाइड कीजिए कि मुझे ए कॉलेज में जाना है या बी में जाना है या सी में जाना है, लेकिन उससे पहले बेगर्स आर नॉट चूजर्स एज इट इज सेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सारे फॉर्म्स आप भर डालिए, हर जगह हाथ पैर मार लीजिए, जहां सिलेक्शन होगा 4 5 6 ऑप्शंस में, उसमें से बेस्ट ऑप्शन हम लोग बैठ के चूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। उसके बाद स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स जो निकले हैं। अब स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स क्या होते हैं? सो दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर अबाउट स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स, सो स्पॉन्सरशिप बेसिकली होता है कि जो कुछ बड़ी शिपिंग कंपनीज होती हैं वो अपने स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स निकालती हैं। एज इन जब आप ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के फॉर्म्स भरते हो तो ये जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं ये आपको इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज ये बताती है कि भाई जैसे ही आपने कॉलेज पास आउट किया, चाहे डिप्लोमा करके, चाहे बीएससी करके, चाहे इंजीनियरिंग करके, आपको हमारी ही कंपनी प्लेसमेंट दे देगी। सो दैट मींस इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज यू हैव अ प्लेसमेंट लेटर इन योर हैंड, विच इज अ वेरी बिग थिंग इन टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि आप आईआईटी में भी जाके प्लेसमेंट होने की गारंटी 100% नहीं है, लेकिन यहां पे प्लेसमेंट होने की गारंटी 100% है, क्योंकि आपको पहले ही प्लेसमेंट दे दिया जाता है इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज। कुछ हाँ उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको मिनिमम 60% अटेंडेंस रखनी है, मिनिमम 60% आपके मार्क्स आने चाहिए। तो भाई वो तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, जब किसी कंपनी में जाओगे तो उतना तो काम करना ही पड़ेगा, तो वो आपको डे 1 से करना रहता है। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद आपको ये टेंशन नहीं होती है कि मुझे घर बैठना पड़ सकता है, मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ सकता है, मुझे इसके बाद हो सकता है सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ जाए, हो सकता है मुझे इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और ही करना पड़ जाए। तो ये सारी टेंशन्स यहां पे नहीं है। सो सबसे पहले वी स्पॉन्सरशिप फॉर्म आए हुए हैं। ये जो वी स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स हैं ये बेसिकली बीई इन मरीन इंजीनियरिंग करा रहे हैं फ्रॉम एमेट यूनिवर्सिटी चेन्नई। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा कैंपस है उनका, और उनके कैंपस में 2 तरीके की स्पॉन्सरशिप है, एक ये वी स्पॉन्सरशिप है और एक मर्क्स कंपनी की भी स्पॉन्सरशिप वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों ही ओपन है। आप एमेट यूनिवर्सिटी में जाके चेकआउट करके उसके लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके स्पॉन्सरशिप में जाके देखिए एमेट एप्लीकेशन, इसको भर के एमेट कॉलेज के अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एमेट कॉलेज में अगर आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू जा रहे हो तो जबरदस्त आपकी लाइफ होने वाली है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप अगर आपको पहले ही मिल गई तो आपको नौकरी की कोई टेंशन नहीं है। आपको जो कॉलेज के बाद जो आपको एक तरीके से इंटर्नशिप करनी पड़ती है उसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे वी स्पॉन्सरशिप भी कर रहा है और मर्क्स कंपनी भी स्पॉन्सरशिप कर रही है एमेट के थ्रू। तो एमेट चेन्नई का भी फॉर्म आपको भर देना चाहिए। लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट थी फीमेल कैंडिडेट जिसने मर्क्स के थ्रू एमेट में अभी वो कर रही है, परसों नरसों मेरी उससे बात हुई, कह रही है सर बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ऑल्दो आई वॉन्टेड टू गो इनटू तोलानी, पर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उसकी फीस 20 लाख रुपए के आसपास थी इंजीनियरिंग के लिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मुझे मर्क्स की मिल गई स्पॉन्सरशिप और ये जो एमेट कॉलेज है यहाँ से मुझे 10-12 लाख में मेरी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग हो जा रही है। तो बहुत महंगा भी नहीं है, स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है और आपकी ज़िंदगी सेट है। एंड फीमेल कैंडिडेट्स को ज्यादा पसंद किया जाता है यहाँ पे। तो अगर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स फीमेल कैंडिडेट्स भरती हैं तो डेफिनेटली उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट।
सो एमएट स्पॉन्सरशिप के फॉर्म सारे खुले हुए हैं। बीएससी इन नॉटिकल साइंस, बी इन मरीन इंजीनियरिंग, ये सारे फॉर्म्स ओपन अप है। आप जाइए वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, गूगल पे डाल दीजिए एमएट स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स, सारी चीजें आपके सामने ओपन अप होके आ जाएंगी। देन सिनर्जी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, अगेन अ वेरी बिग शिपिंग कंपनी, उसके भी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स ओपन है अगस्त बैच 2025 के लिए। लिंक यहां दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप सिनर्जी के स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सिनर्जी का जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम करा रहे हैं 7 आइलैंड नाम के कॉलेज में, और इस कॉलेज में आपका स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के थ्रू अगेन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस, मरीन इंजीनियरिंग से आप इन तीनों कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके भी फॉर्म्स लाइव हैं अभी, आप अप्लाई कर दीजिए, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, वरना फिर आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। देन सी स्पैन स्पॉन्सरशिप फॉर्म, सी स्पैन स्पॉन्सरशिप फॉर्म जो है दैट इज ऑल्सो लाइव फॉर डीएनएस कोर्स ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। 6 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट थी, निकल गई है, लेकिन अभी भी अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी भी ये फॉर्म्स लाइव हैं, आप इनको भर सकते हैं। इवन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स कुछ मेल्स के लिए भी वहां पे एप्लीकेबल दिख रहे हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, आपको सारी चीजें दिखेंगी। नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक का यूज करके वेबसाइट्स पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, बीएससी नॉटिकल साइंस फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, देखिए ये खुला हुआ है, तो यहां पे आप जब लिंक पे जाएंगे तो आपको सारे स्पॉन्सरशिप्स दिख जाएंगे। तो अगर आपको बीएससी करनी है तो बीएससी वाले पे अप्लाई कीजिए, अगर आपको डिप्लोमा करना है डिप्लोमा वाले पे अप्लाई कीजिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग वाले पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसके बाद एमएससी स्पॉन्सरशिप भी चल रहा है, अगेन अ वेरी बिग शिपिंग कंपनी। एमएससी स्पॉन्सरशिप फॉर डीएनएस एंड बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, लास्ट डेट इज 14 अप्रैल। अब ये जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है, खत्म होने की कगार पे है। सबसे पहले इसका फॉर्म भर डालिए, इसमें लेट मत कीजिएगा, इसमें वेट मत कीजिएगा, काफी अच्छी कंपनी है और जिंदगी सेट हो जाएगी अगर आपको इसका स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो। देन एससीआई स्पॉन्सरशिप, अगेन एससीआई एमटीआई की स्पॉन्सरशिप बहुत बेहतरीन है। डीएनएस कोर्स के लिए अगस्त बैच के लिए लास्ट डेट है 25 मई, मतलब 24 तारीख को आपका IMU-CET का पेपर है, 25 मई को इसका स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम का फॉर्म भरना है। अब बहुत सारे जो कॉलेजेस है ना, वो आपका इसी महीने के अंदर अंदर रिटन इंटरव्यू भी ले लेंगे, इसी महीने के अंदर अंदर आपके इंटरव्यूज भी ले लेंगे, एंड वो फिर वेट करेंगे आपके IMU-CET रैंकिंग का। अगर आपकी रैंकिंग मिला के, इंटरव्यू मिला के, रिटन मिला के आपके मार्क्स टोटल में अच्छे आए, आपको एडमिट किया जाएगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। यू कैन एनरोल इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी है, अभी से तैयारी शुरू करनी है, तब जाके अगस्त में आप एक अच्छे कॉलेज में होंगे और उसके बाद एक ऑफिसर बनने का सपना आपका सच होने के कगार पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सिम्स की स्पॉन्सरशिप, अगेन गुड है, बढ़िया है, बेहतरीन है। तो इसके भी बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स जो अगस्त से शुरू हो रहे हैं, लाइव हो गए हैं। लिंक यहां पे मैंने शेयर कर दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे इसकी वेबसाइट पे। तो इसके लिए सिम्स का जो डीएनएस का कोर्स है उसके लिए भी शुरू हो गया है, डीएनएस कोर्स के लिए भी हो गया है, बीटेक के लिए भी हो गया है, दोनों के लिए ही ये ओपन है। देन फ्लीट मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप फॉर्म, दिस इज ऑल्सो ओपन। सो ये 7 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, जिसमें डीएनएस और बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट्स को वेलकम किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। क्लियर है भाई? यहां तक आई होप मैंने ज्यादातर चीजें, सारी ही चीजें कवर अप कर दी हैं। इन केस इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू स्टिल हैव क्वेरीज, नीचे गूगल फॉर्म जो दिया है उसको भर दीजिए। उसमें हम लोग बहुत ही जल्दी एक सेशन कंडक्ट कराने वाले हैं, जिसमें आपके डाउट्स, आपके तकलीफें, आपकी क्वेरीज, सारी चीजें मैं और चीफ इंजीनियर अरुणव सर बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे किस तरीके की लाइफ होती है, क्या सारी चीजें होती हैं। यू अलॉन्ग विद योर पेरेंट कैन अटेंड दिस सेशन। तो नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को भर दीजिए, आपके पास कॉल आएगा, आपको टाइम बता दिया जाएगा किस टाइम पे आपका सेशन है, और वहां पे हम लोग आपकी क्वेरीज को दूर कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी आंसर्ड। इन केस अगर उसके बाद भी आपको कुछ क्वेरीज है और तुरंत के तुरंत आप आंसर चाहते हो, यू कैन कॉल ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर विच इज 9871945522। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम।
And if you like this video, if you like this information, please like this video and also share this video with your friends जिनको आपको लगता है कि ये लोग ऑफिसर बनने लायक हैं और ये मर्चेंट नेवी एज अ करियर को ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर करते हैं तो इनकी लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक और इंफॉर्मेशन के साथ, एक और तरीके के साथ आपको हेल्प करने के लिए, आपको मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनाने के लिए आपका भाई पूरी तरीके से हेल्प करेगा। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।